Hello guys, welcome back to my channel. And this is the first time I am talking about something related to PTE because अगर आपने मेरी पुरानी videos देखी होंगी तो I only talk about eating or this and that. I've never revealed my face, so this is my first time. But today, since the topic is PTE, I recently gave my PTE exam like I think 20 days back, and I actually received a great result in my first attempt. I do not guarantee you getting the same marks as I got, but I can say this, that you'll definitely get better at it and receive better results after watching this video. I watched hundreds of videos during my study period, and I can tell you this, I am summarizing all the 100 videos I watched in this one video. So it could be lengthy, it could not be lengthy, it's like you understand now. So make sure to subscribe so that you can get the further updates. And PTE is basically checked by AI, so there is no human intervention. Okay, it's solely AI. And in speaking as well, you just need to speak to the computer. You don't have to talk to any person. If you have any sort of social anxiety or nervousness in front of people, I think PT will be the best for you. So without further ado, let's just start. Let me tell you guys that I am not an expert in English, neither I'm an expert in PT or IELTS. I'm just telling you everything I experienced actually, and how it could help you. So let's start. First of all, you need to be very thorough with the modules, okay, that are gonna come in PTE. Because if you don't know what's gonna come, if you're not ready for it, you won't be able to, fight it. So to fight it, you need to know कि what's coming. So पहले तो you need to understand that 4 sections होते हैं: speaking, listening, writing and reading. ठीक है? And सबसे पहले आते हैं speaking. And maximum लोगों को speaking में दिक्कत होती है. ठीक है? तो what you need to do is do not be nervous. ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस मत हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड. जब मैं पेपर देने गई थी सेंटर पे, आई वाज लाइक वेरी नर्वस. ठीक है, मेरे धक हो रहा था कि व्हाट इज गोना हैपन, आई डोंट नो दिस एंड दैट. बट आई देन रिमेंबर्ड कि इफ आई बी नर्वस आई विल गिव रॉन्ग आंसर्स. सो पहले तो स्पीकिंग में आपको आता क्या क्या है, आई लेट यू नो. पहले तो पर्सनल इंट्रोडक्शन आता है, एंड दैट इज अप टू यू. इफ यू वांट टू से इट. इफ यू डोंट वांट टू से इट, स्किप इट. ठीक है, एंड इट डज नॉट डिडक्ट any marks of yours, or it does not get you marks. It's just optional. Okay, next comes read aloud. In read aloud you need to be very careful with what you speak. ठीक है, अगर तुम्हारे पैराग्राफ में कोई डिफिकल्ट वर्ड है, just zip it, don't use it. अगर तुम्हें पता है तुम वो वर्ड नहीं बोल पाओगे, then just don't speak that word. Okay, अगर तुम्हें लगता है कि वो बोल लोगे तुम, क्योंकि तुम्हें बोलने से पहले 30 सेकेंड्स का प्रेपरेशन टाइम मिलता है, एंड उस पीरियड में यू विल गेट टू नो कि तुम बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे. तो इसीलिए अगर नहीं बोल सकते तो डू नॉट से एनीथिंग, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कंटेंट, इन सब के मार्क्स मिलते हैं आपको. ठीक है, बट अगर आप 2-3 वर्ड्स छोड़ भी दोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, तब भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. फिर आता है रिपीट सेंटेंस. रिपीट सेंटेंस में बेसिकली तुम्हें सुनाई देगा एक सेंटेंस, एंड यू जस्ट नीड टू से इट आउट लाउड एंड रिपीट इट. ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी ईजी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट अ लिटिल बिट, ताकि यू गेट टू नो कि कैसे स्पीड में आता है, कैसे आता है ये वो. ठीक है, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्क्राइब इमेज डिस्क्राइब करना आना चाहिए. एंड उसके लिए भी टेम्पलेट्स आते हैं तुम्हारे, एंड वो टेम्पलेट्स लाइक बहुत ही यूजफुल होते हैं जिन लोगों, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑन द स्पॉट नहीं बोल पाते हैं. तो लाइक मी, टेम्पलेट्स वर्क फॉर मी एज वेल. तो टेम्पलेट्स आर गोना बी अमेजिंग फॉर यू. देन कम्स रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर के अंदर तुम्हें हेडफोन्स में यू लिसन टू द 2-3 पीपल टॉकिंग, एंड फॉर लाइक maybe a minute or 1.5 minute you will hear them talking, and फिर तुम्हें 30 seconds, I think 30 or 20 seconds मिलते हैं to prepare what you're gonna say, and then you need to repeat whatever they said. तो मैं तो इसमें यही बोलूँगी कि you should first of all, जब तुम सुन रहे हो ना, write the key points. लगे हाथ लिखते जाओ की पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं वो. ठीक है,
एंड अगर तुम की पॉइंट्स लिख लोगे ना, मैक्सिमम काम तुम्हारा हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 90% ऑफ योर वर्क इज डन, ठीक है। एंड वो 10% वर्क क्या बचा है, यू जस्ट नीड टू एड मोर ओवर ऑल्सो, हाउ एवर, एंड दिस इन दैट, ओनली दिस। फिर तुम्हारा आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड उसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि if a person is stealing something, what will he be called? A thief, right? So you just need to say that, okay? Only 1 or 2 words. According to my stance, I think इसके marks include नहीं होते हैं, because you won't believe when I say this कि there was a question where it was something related to victim only कि if a person got attacked and then what will he be called? So I was supposed to say a victim, but since I was nervous and I was in a hurry कि कहीं mic off ना हो जाए, I said criminal. And I was like, okay, this went really bad, oh my gosh, I did this. So but surprisingly it did not harm anything, ठीक है, and I still got 90 on 90. So guys, अगर ये हो भी जाता है, so it is fine. And second of all, I forgot to tell you guys, but in retail lecture when I was speaking ना, गलती से मेरे मुंह से लेकिन निकल गया, या इंग्लिश के टेस्ट में मैं हिंदी बोल रही हूँ लेकिन, क्योंकि लाइक आई हैव टू मेंटेन माई फ्लुएंसी, ठीक है, एंड उसकी वजह से मैंने लेकिन बोल दिया, एंड आई थॉट कि मे बी आई वॉज वेरी सैड कि ओ माई गॉड मैंने क्यों बोल दिया, मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे ये वो, बट सरप्राइजिंगली व्हेन आई गॉट द मार्कशीट आई गॉट फुल. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि अकाउंट क्यों नहीं हुआ, and I later got to know that it was mainly because I used all the keywords correctly. You should practice कि keywords कैसे लिखे जाते हैं. I'll make another video on it if you want. You can just let me know in the comments. I'll make another video and there you can I'll tell you how to make keywords. Now coming to writing. In writing दो चीज़ें आती हैं. You have to write an essay और दूसरा होता है समराइज करना होता है. जो एक चीज़ आपको एक 2-3 पैराग्राफ्स मिलेंगे लिखे हुए, यू जस्ट हैव टू समराइज देम, ठीक है. ये दो चीज़ें होती हैं. अब ऐसे के अंदर यू हैव टू राइट 200 to 300 वर्ड्स, ठीक है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू गो बियॉन्ड 210 वर्ड्स. बहुत सही है वो, उससे ऊपर मत जाना, ठीक है. 210 के नीचे नीचे रहना. 201 भी होंगे ना, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया. तो ऐसे लिखना इज प्रिटी ईजी, बट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू यूज द परफेक्ट ग्रामर इन इट, एंड it's pretty difficult for some people जिनकी English is not very good or who are not habitual to English. Like I am neither, कोई English background नहीं है मेरा, but since मेरी family में English काफ़ी यूज़ होती है, तो इसीलिए थोड़ा आई वॉज लाइक ओके विद इंग्लिश, बट काफ़ी घरों में नहीं होता है, विच इज़ टोटली फाइन. एंड मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक समराइज रिटन टेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी ईजी, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना होता है उसके अंदर, तुम्हें जो ऐसे दे रखा है ना, उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई भी पैराग्राफ की अगर 3 पैराग्राफ है उनमें, तो उनमें से किसी भी पैराग्राफ में से एक लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, जिसके अंदर अराउंड मान लो 30 वर्ड्स, ठीक है, 30 वर्ड्स हैं उसमें, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके नीचे एज इट इज लिख दो, ठीक है, अपने उसमें. फिर उसमें मोर ओवर लिखो, मोर ओवर लिख के एक और लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है. फिर हाउ एवर, फिर एक और लाइन सेम ढूंढो और उसे कॉपी पेस्ट कर दो नीचे, एंड दिस विल गेट यू मार्क्स, ठीक है. इट जस्ट डिपेंड्स कि तुम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अगर तुम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तुम सब मेंशन कर रहे हो जो जो उसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, then you'll get amazing marks. You don't have to worry about a single thing. So it is very important if you do that. Now let's talk about reading. सबसे पहले तुम्हारा आता है fill in the blanks. Fill in the blanks के अंदर तुम्हें single blanks दे रखे होते हैं. You need to click on the blank and then कुछ options आएंगे कि तुम ये इनमें से कोई fill कर सकते हो उस blank को, उस ऑप्शंस में से किसी से. एंड उसमें मैक्सिमम टाइम्स ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं, ठीक है. तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम ग्रामर ठीक से यूज़ कर रहे हो. एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विथ ग्रामर, मेक श्योर टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ कंजंक्शंस और
some sort of nouns, pronouns, this and that, ये आते हैं. फिर आता है तुम्हारा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, एक सिंगल आंसर चूज करना होता है. फिर रीऑर्डर पैराग्राफ्स, तुम्हें पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं, यू हैव टू ऑर्डर देम अकॉर्डिंगली. ठीक है, जैसे तुम्हें बोल रखा है एक स्टोरी दे रखी है या फिर एक कोई पैराग्राफ है पर उसको सेंटेंसेस वाइज लिख रखा है. ठीक है, ऊबर खाबर सेंटेंसेस में यू हैव टू मेक इट एक यूनिफॉर्म पैराग्राफ कि जो सेंटेंसेस अलाइन करेंगे दूसरे से. And that's upon your understanding, but it's very easy. It's not very difficult जो आपको रोक देगा from getting marks, तो don't worry about it. फिर आता है fill in the blanks, box with missing words. okay, एक नीचे छोटा सा बॉक्स होता है, इसके अंदर वर्ड्स होते हैं काफ़ी सारे. you have to pick and drop it wherever you think कि वो जाएगा word. so it is easy, but you need to make sure your grammar is top notch for it. ऑल्सो यू नो कि मीनिंग्स क्या होते हैं, वोकैबुलरी यू शुड नो. ठीक है, एंड ऐसे में ऑल्सो वोकैबुलरी मैटर्स. ठीक है, तो अच्छी वोकैबुलरी यूज करो. फिर तुम्हारा आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, लास्ट पार्ट. एंड उसमें मल्टीपल चॉइस होती है और काफ़ी सारे चॉइसेस होती हैं और तुम्हें मल्टीपल आंसर्स चूज करने होते हैं उसके अंदर से. एंड मैं यही कहूँगी कि इफ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो मेक श्योर अगर तुम्हें एक सही लग रहा है उन ऑप्शंस में से, चूज वन ओनली. ठीक है, एंड डू नॉट चूज एनीथिंग एल्स. ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगी. एंड इफ़ यू थिंक कि यू डाइसी कि इट कुड बी दिस, इट कुड नॉट बी दिस, आई एम नॉट श्योर, डू नॉट चूज इट, लीव इट, जस्ट चूज ओनली वन एंड मूव ऑन. तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ लिसनिंग. एंड इसमें सबसे पहला मॉड्यूल कौन सा होता है आपका, विच इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट. अब इसके अंदर आपको सुनाई देगा एक ऑडियो एंड यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स अलोंग विद इट एंड देन यू हैव टू राइट वट एवर यू हर्ड. ठीक है, ऑल द कीवर्ड्स यू रिटन आपको एज इट इज लिखना होता है. तो मेक श्योर वट एवर यूर राइटिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, एंड एड लाइक द एक्स्ट्रा कंजंक्शन वर्ड्स जैसे एंड, मोरओवर, हाउएवर एंड दिस एंड दैट. आई टेल यू मोर अबाउट इट. फिर आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सेम एज रीडिंग. फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सेम. ठीक है, तुम्हें सुनाई देगा. ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज राधिका, आई एम इन डैश क्लास. तो तुम्हें सुनाई देगा, तुम्हें वो बोलेंगे कि आई एम राधिका, माई नेम इज राधिका, आई एम इन 11th क्लास. सो यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक विद 11th. ठीक है, so that is how fill in the blanks works. Next is highlight correct summary. Now you have to listen to the summary. आपको एक ऑडियो चलेगी एंड ऑप्शंस में काफ़ी सारी समरीज दे रखी होंगी. यू हैव टू चूज द करेक्ट समरी. फिर आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. फिर सिलेक्ट मिसिंग वर्ड. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड के अंदर आपको एक सेंटेंस बोलेंगे लंबा सा, ओके, एंड जो उनका लास्ट वर्ड होगा ना उसमें आपको वर्ड की जगह एक बीप सुनाई देगा, लाउड बीप. सो यू हैव टू गेस कि कौन सा वर्ड हो सकता है. ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू लिसन थॉरली. एटलीस्ट द लास्ट सेंटेंस दे स्पीक ना, आफ्टर फुल स्टॉप यू हैव टू लिसन टू दैट थॉरली एंड यूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फिर आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. तुम्हें एक ऑडियो चलेगा, सेम. ठीक है, ऑडियो चलेगा एंड एक नीचे वो एज इट इज़ जो बोल रहे हैं ना, वो एज इट इज़ नीचे लिखा होगा, बट कुछ वर्ड्स डिफरेंट होंगे. जो समरी नीचे लिखी हुई होगी ना, जो उन्होंने बोला है वो एज इट इज़ जो नीचे लिखा होगा, वो उनमें कुछ वर्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो जब वो बोल रहा होगा ना स्पीकर, उसके साथ साथ तुम्हें जो जो वर्ड्स डिफरेंट हैं वो सारे हाईलाइट करने. उन पर क्लिक करो, वो हाईलाइट हो जाएंगे. ठीक है, फिर लास्ट में आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन. जो वो बोलेंगे यू हैव टू राइट इट. ठीक है, जो सेंटेंस बोलेंगे, एक सेंटेंस बोला जाएगा, यू जस्ट हैव टू राइट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल्स जो है वो लाइक जो होते हैं PTE के अंदर. आई थिंक इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर the people who are watching it and who have no idea what PTE is about. Thanks for watching this video. I hope you liked it. I'll take a leave now.